Myself, Dr. Bharti Agarwal. I have done my MD Medicine from GMC Patiala, followed by PDCC in Infections from SGPGI Lucknow. Afterwards, I did my fellowship in Rheumatology, Euler Fellowship, and now I am working as a consultant physician and rheumatologist at my own setup in Ludhiana, that is at Punjab Rheumatology and Immunology Clinic. Today, the topic of my discussion is hypertension. At one end, we are dealing with the pandemic of COVID, and now it is the Russian-Ukraine war. And at the other end, we are dealing with the epidemic of lifestyle diseases, hypertension, diabetes, obesity, and depression. And they are already posing a threat to already constrained health system. I have chosen hypertension because this is one of the most common preventable and the treatable cause of long lifetime complications. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी वांट्स टू हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बट हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है. वेन एवर द हार्ट बीट्स, इट पम्प्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, which creates pressure in the wall of the blood vessel. This is known as blood pressure. But what happens over the period of time when the blood vessels they become less compliant, there is an increase in resistance and heart has to pump harder. This leads to increased pressure in the vessel wall, which is known as hypertension or high BP. This persistent increase in blood pressure, then the normal pressure in the artery is known as hypertension. And if it is left untreated, it can cause serious complications on the heart, kidney, nervous system, and even the eyes. So, we should be treating hypertension at an earliest. Now, a word about what are the various risk factors leading on to hypertension. जो पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं 80% ऑफ द टाइम्स दे आर द पेशेंट्स ऑफ असेंशियल हाइपरटेंशन. दैट इज उम्र के हिसाब से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं. उसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है एंड दे प्रेजेंट टू अस विद द फीचर्स ऑफ हाइपरटेंशन, ईदर द सिम्टम्स, और उनको होता है कि टायर्डनेस फील होता है, फटीग होता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, और समटाइम्स हाइपरटेंशन पहले पता ही नहीं लगती एंड दे कम टू अस विद द कॉम्प्लिकेशंस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सांस का फूलना, पौड़ियाँ चढ़ने पे सांस का फूल जाना, या कई बार आंखों में ब्लरिंग होना या व्यूअल लॉस भी होना. ये कुछ इमरजेंसी साइंस हैं जिसके साथ पेशेंट्स कई बार हमें प्रेजेंट करते हैं. दैट इज एजिंग. 80% of the patients presenting to our OPD practice are having essential hypertension, and age is the most important risk factor. So we have to age gracefully. Secondly, it is the family history, a very strong family history. If any of the parents is having hypertension, then the chances of the kid having hypertension that doubles. Third, it is the diet which is playing a major gamut, major risk factor for the development of hypertension. आजकल बच्चों का स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट इज़ अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, more and more eating of the junk food, and it is a junk food and a sedentary lifestyle because we all say we are what we eat, and definitely we are going to deal with all these complications of physical inactivity, that is hypertension. ये भी देखा गया है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें एक पोटेशियम माना जाता है और एक सोडियम माना जाता है. पोटेशियम का जो इनटेक है फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो आर हैविंग ऑल जंक फूड, सो पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है. एंड ये देखा गया है लेस ऑफ पोटेशियम इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड समटाइम्स द चांसेस ऑफ पैरालिसिस, दैट इज वीकनेस ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी. So we should be consuming more and more of fruits and fresh vegetables. Thirdly, salt का intake.
जो भी हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं दैट इज़ वेरी रिच इन सोडियम। नॉर्मली जो भी फूड नेचर में होता है उसमें कोई भी सोडियम नहीं होता, सारा का सारा सोडियम इज बीइंग एडेड एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। सो वी शुड हैव अ स्मार्ट शॉपिंग स्टाइल एंड हैव द लीस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हाइपरटेंशन का आज की इसमें देखा गया है दैट इज मोटापा, ओबेसिटी। एंड ये जो ओबेसिटी जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो हमारे पेट के आसपास की चर्बी होती है, वो ज़्यादा एथ्रोजेनिक होती है। दैट मीन्स कि वो हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है एज कम्पेयर टू द पेरिफेरल फैट। सो इट इज़ द ओबेसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। आजकल आप सबने एक सिंड्रोम सुना होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, which is a combination of sedentary lifestyle leading on to obesity, hypertension, डायबिटीज की पहली स्टेज जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड डिसलिपिडीमिया। सो वी आर डीलिंग विद ऑल दिस, द सिंड्रोम एक्स दैट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मूविंग ऑन, हाइपरटेंशन डज नॉट कॉज एनी ऑब्वियस साइंस एंड सिम्टम्स, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ साइलेंट किलर। तभी बहुत ज़रूरी है हाइपरटेंशन को अर्ली एंड एक्यूरेटली डायग्नोज करना, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। एक कंडीशन होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जिसमें पेशेंट एकदम कंप्लेन करता है ब्लरिंग ऑफ विजन, आँख से धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है, और वॉमिटिंग जो एकदम बहुत दूर जाके गिरती है, जिसको कि हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। These are some red flag signs कि इमीडिएटली पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना चाहिए। अदरवाइज रूटीन में with patients come to our OPD, they are having very vague aches and pains, tiredness, letharginess, lack of concentration. So these are also the clue signs that patient should be taken into consideration for checking blood pressure. Now, ब्लड प्रेशर की बात की पता तो होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर जब हम नॉर्मल बोलते हैं, अ नॉर्मल इंडिविजुअल शुड हैव अ बीपी ऑफ लेस देन 120 मिलीमीटर्स ऑफ सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 मिलीमीटर्स ऑफ डायस्टोलिक। लेमन लैंग्वेज में जब हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जब हार्ट एकदम रेस्ट करता है इन बिटवीन द बीट्स वो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज less than 120 by 80. Then there is a stage in which I am going to play a major role, that is pre-hypertension. इस स्टेज में क्या होता है, systolic blood pressure that comes in the category of 120 to 139 and diastolic comes in the category of 80 to 90. So this is the category which is known as pre-hypertension, or the category in which the various lifestyle strategies and the lifestyle modifications can play a major role. हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, स्केल को लेफ्ट तरफ भी लेके जा सकते हैं, स्केल को राइट तरफ भी लेके जा सकते हैं, और वी कैन ईदर डिक्रीज द डोज ऑफ मेडिकेशंस, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज में काम कर सकते हैं। The next is the stage of stage 1, and then the stages of hypertension, like they are like stage 1, stage 2 and stage 3, but which is the doctor's portfolio. आपके लिए जो हम stage important है, that is the stage of pre-hypertension. And patients हमारे पास आते हैं and normally they say, डॉक्टर साहब मैंने घर पे बीपी चेक किया था, ठीक आया है, जैसे मैं क्लिनिक में एंटर किया मेरा बीपी बढ़ गया। आप सबको जानकर हैरानी होगी, इसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। डॉक्टर के वाइट कोट का डर होता है। Whenever the patient अपने घर पे होता है, उसका घर का माहौल होता है, पेशेंट रिलैक्स्ड होता है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता। बट द मोमेंट दे रीच द क्लिनिक, दे बिकम एंग्शियस, दे पैनिक, एंड इट लीड्स टू 10 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ राइज ऑफ ब्लड प्रेशर। वो पेशेंट्स को जो उनका बीपी वाइट कोट हाइपरटेंशन कैटेगरी में आता है, उनको भी कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा उतना ही है जितना कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को खतरा रहता है। So what we say these days that when you reach to our clinic, we just have a single reading. But एक नया सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल विच इज 24 आवर्स एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एंड ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन शुरू हो गया है बीपी मॉनिटरिंग के लिए भी, टू पिकअप हार्ट की रिदम कई बार मिस होती है जो आपके क्लिनिक प्रैक्टिस में नहीं पता लगता है। So this gives a very comprehensive idea to the doctor that I am dealing probably with the patient who is having a labile hypertension,
जिनका हाइपरटेंशन ऊपर नीचे होता रहता है, सस्टेन नहीं होता, हार्ट की रिदम की एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस रहती है, which creates a more concern for a treating doctor. First of all, हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कब लेबल करते हैं। पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आता है, हमारे पास 2 दिन लगातार पेशेंट आए, 2 या 3 रीडिंग्स होंगी, उन 6 रीडिंग्स का जो एवरेज होता है दैट इज नोन एज अब हाई ब्लड प्रेशर। A single reading taken at a single time does not denote that the patient is having hypertension. So it is very important that we should be labeling the patient as a case of hypertension by taking average of these 2 to 3 readings on 2 consecutive days. I have talked about white coat hypertension and the labile hypertension as such. Now, we know that hypertension, if left untreated, causes the damage to the kidneys, to the heart, to the brain as well as to the eyes. So, we should be focusing more on the lifestyle interventions in the form of increase in the physical activity. एक्सरसाइज आप कह लो एक ड्रग फ्री तरीका है ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आने का। द पर्सन्स हु वर्क आउट रेगुलरली आर फिजिकली फिट, देयर हार्ट्स आर स्ट्रॉन्गर एंड रोबस्ट एंड वो ज़्यादा पंप करते हैं लीस्ट एफर्ट से। सो इससे प्रेशर आर्टरीज में कम होता है और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में रहता है। वी डू रिकमेंड टू द पेशेंट्स एक्सरसाइज that should be including your warm up, then your proper aerobic activities followed by strength training, then the आपका cool down period, उसके बाद breathing exercises and meditation, and it should have a curriculum of 30 to 45 minutes 5 days a week. Physical exercises and activity plays a major role. Secondly, डाइट के बारे में जैसे बात की थी, हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पूरा का पूरा ये चोकर वाला आटा लेना चाहिए, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए एंड सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं, केला एंड अनार, ये भी हमारी डाइट में ज़्यादा फाइबर इंक्रीज होना चाहिए। थर्डली, सॉल्ट का इंटेक, जैसे मैंने बताया प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम रहेंगे। एक जो छोटा चमचा नमक का होता है दैट कंटेन्स 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम, वो हमारी डाइट के लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचार, पापड़, दही में, रायते में, ये सारी चीज़ें नमक का हमें परहेज करना चाहिए। लास्टली, ब्लड प्रेशर का आपका एडिक्वेट कंट्रोल। जब भी डॉक्टर के पास आ रहे हैं, अपना हमेशा उनको सच बताइए, कभी भी मेडिसिन मिस कीजिए, आपका डॉक्टर आपके फ़ायदे के लिए बैठा है, हमेशा आपका फ़ायदा ही करेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इज़ अ मोस्ट कॉमन, जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है, जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो जस्ट स्टार्ट मेडिटेशन, प्राणायाम्स करने शुरू करेंगे, अपने माइंड को स्टिल करो, लेट गो, रिलैक्स, मेडिटेट। जो कुछ भी होगा लाइफ में अच्छा होगा। परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रादर देन थिंकिंग व्हाई दिस हैपेंड टू मी, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, द मैसेज इज व्हाट शुड बी डन। थैंक यू।